नमस्कार, मैं हूँ रेशमा और आप देख रहे हैं यूटी न्यूज। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दमन के मछुआरों ने पर्स फिशिंग को दी गई अनुमति का किया विरोध। वापी की आरती ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने आयोजित किया रक्तदान शिविर। और ठगी के मामले में 2 आरोपियों को दमन पुलिस ने किया गिरफ्तार। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। दमन प्रशासन द्वारा बड़ी बोटों को पर्स फिशिंग की अनुमति दिए जाने का छोटी बोट मालिकों द्वारा एक बार फिर विरोध जताया गया। पिछले दिनों दमन प्रशासन द्वारा बड़ी बोटों के मालिकों को 2 साल के लिए पर्स फिशिंग की अनुमति दिए जाने की बात सामने आई थी, जिसके विरोध में शनिवार को किए गए धरना प्रदर्शन के बाद सोमवार को एक बार फिर इस मुद्दे पर स्थानीय मछुआरों ने अपना विरोध प्रकट किया। बता दें कि महाराष्ट्र और गुजरात में बड़ी बोटों के पर्स फिशिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो दमन दीव प्रशासन ने किस आधार पर बड़ी बोट मालिकों को अधिसूचना जारी कर तुरंत ही फिशिंग की अनुमति दे दी, ऐसा इन मछुआरों का आरोप है। इससे यह साफ कहा जा सकता है कि दमन प्रशासन छोटे मछुआरों के साथ अन्याय कर सिर्फ बड़ी बोट मालिकों के लिए ही कार्य कर रही है। इतना ही नहीं बल्कि सांसद लालू पटेल की धर्मपत्नी तरुणा पटेल के दबाव में आकर प्रशासक ने यह निर्णय लिया है, ऐसा भी इन मछुआरों का आरोप है। लिहाजा आगामी 19 दिसंबर तक प्रशासन द्वारा पर्स फिशिंग की अनुमति को वापस नहीं लिया जाता तो मुक्ति दिवस के मौके पर काला दिन मनाने तथा दमन दीव के साथ साथ पूरा गुजरात एवं महाराष्ट्र बंद कर धरना प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी दी गई है। थोड़ा दिवस पहले भी जो एडमिनिस्ट्रेटर है लगभग 2-3 દિવસ પહેલા એક ઓર્ડર ઇસ્યુ કર્યા છે કે પરસ્યુ નેટ ફિશિંગ જેને કે રાફટ ફિશિંગ કરવા માટે 15 બોટને પરમિશન આપી દીધી 2 વર્ષ માટે ફિશિંગ કરવા માટે। એના વિરોધ અમે 2 થી 2.5 વર્ષથી ચાલી રહ્યા છે। વિરોધ અહીંયા જ નથી, પૂરું મહારાષ્ટ્ર, પૂરું ગુજરાત, પૂરું દમણ અને બધા જ મારા દમણના આજુબાજુના વિસ્તાર લોકો આજે અમારી સાથે બી છે। નારગોલ, ઉમરસારી, ઉમરગામવાળા અને બધા જ આવેલા છે। એ લોકો બી દરિયાના એ લોકો મૂળ જે નાના મછવાળા લોકો જે છે જે એ લોકો કાયદેથી ફિશિંગ કરે, જે ટ્રેડિશનલ ફિશિંગ કહેવાય, જેની નેટ મોટી હોય ને મચ્છી મોટી મોટી પકડે। પણ આ રાફટ ફિશિંગ એવું છે કે થોડાક પેપરમાં દાનુનું પેપરમાં આવ્યું કે રાફટ એટલે દરિયાઈ ભૂત, એ એવી પ્રજાતિને સાફ કરી નાખશે। એ હુનું બી રિપોર્ટ છે, વર્લ્ડ ઓર્ગેનાઇઝેશનનું બી રિપોર્ટ છે કે 2020માં અગર એ ફિશિંગ ચાલુ રહી, અમેરિકા, UN બધું જ એ કરે છે કે તમારે આપણે પાપલેટ બી આપણા બચ્ચાને દેખાડવું પડશે કે આ છોકરા આ પાપલેટ એવી રીતે ઉઠું, આ ડારા ફિશ એવી રીતે ઉઠી। અને આ રીતે જે ઓર્ડર એડમિનિસ્ટ્રેટરે ઇસ્યુ કર્યા એને ફક્ત 5 કરોડપતિ એવા છે તેને ફાયદા પહોંચાડવાનું કામ કર્યું। અને આ બિચારા મારા ગરીબ નાની બોટવાળા ટંડેલ ભાઈઓને જે હજારો બધા માણસો સંખ્યામાં જે ધંધા કરે છે તેનું પરિવાર ડિપેન્ડ રહી છે આ બોટની ફિશિંગમાં, તેનું આખું મારી નાખવાનું કામ કર્યું। ફિશરીઝ મેડમને અમે તમે કહ્યું કે કોઈ બી ઓર્ડર કરતાં પહેલે સોસાયટી અને જનહિતના ઓર્ડર હોય એને જાણ કરવાની જરૂરી હોય। અમારી સોસાયટી રજિસ્ટ્રેશન છે, અમારી સોસાયટી સરકારને ટેક્સ ભરે, ડીઝલ પંપ જણાવે તો અમને બી જાણ કરવું હોવું જોઈએ। આમાં થોડાક 1-2 પોલિટિશિયન જે છે જેના પરિવાર તેના સગા સંબંધીને ફાયદા પહોંચાડવાનું કામ કર્યું અને આ ઓર્ડર એવા ઇસ્યુ કર્યા જેમાં આ ગરીબ મછુઆરોને મારી નાખવાનું કામ કર્યું। આ મેડમે એવા લાયસન્સ ઇસ્યુ કરેલા છે જેમાં હવે એક કૃષિ ક્ષેત્રમાં આવે, એગ્રીકલ્ચર મિનિસ્ટ્રીમાં આવે। અગર કોઈ ખેડૂત હોય તો જ તેને ખેડૂતની જગ્યા લેવાય। પણ મારું એ કહેવાનું છે કે જે માણસ લોકો જેના પૂર્વજોના ધંધા નથી, મચ્છીમાર છે બી નથી અને એવાને લાયસન્સ ઇસ્યુ કરી દીધું જે મચ્છીમાર જ નથી, આજે આપણે ખેતીની જગ્યા લેવાનું હોય તો ખેડૂત બનવાની જરૂરી હોવો જોઈએ, તો એવા માણસને કેમ લાયસન્સ ઇસ્યુ કરી દીધા? એ બી અમે એને એક કેવું છે અભિલાષા મેડમને તમારા મીડિયમના માધ્યમથી જણાવું છું કે સાંસદભાઈની બૈરી તરુણાબેન એ પોતે જઈને એડમિનિસ્ટ્રેટર પર પ્રેશર કર્યું ને 5 કરોડપતિ માલિકને ફાયદા પહોંચાડવા માટે આ ઓર્ડર ઇસ્યુ કરાવ્યા, જબરજસ્તી ઓર્ડર ઇસ્યુ કરાવ્યા અને આ બિચારા ગરીબ મછવારાને મારી નાખવાનું કામ કર્યું છે। મેં એ લોકોને હિદાયત કરી કે આ ભાઈને કોઈ બી આઉટભગત નહીં કરે, કેમ કે આ ગરીબનું પેટનું છે, આ મરશે તો એનું પરિવાર મરશે। પણ પેલા લોકોના 2 ધંધા છે, એક બંધ થઈ બીજા ચાલુ છે। જઈને તમે રિપોર્ટ માંગી લેજો એને મેડમ પાસે કે તેની પાસે બિલ્ડર છે, કોઈ બુટલેગર છે, કોઈ ઉદ્યોગપતિ છે, એ બધા પૈસા દેખાયા દરિયામાં એટલે દરિયાના ધંધા કરવા માટે। ને અમુક તો બુટલેગર વચ્ચે અમે મરીન પોલીસને બી જાણ કરી કે પિસ્તોલ લઈને ગયા છે અંદર, તો બી અમારી હાથે કોઈ પોલીસ પ્રશાસન નથી,
કોઈ જ નહીં અમને મદદ કરે. અમારી લડાઈ અમે ફક્ત અમે જ લડી રહ્યા છે. ના સાંસદ અમારી મદદ કરે, ના પોલીસ પ્રશાસન મદદ કરે, ને એડમિનિસ્ટ્રેશન અમારા મદદ કરે. તો અમે એ ચેતવણી આપી છે કે 19 તારીખ લગીન જો આ રિવોક નહીં થઈ એ એડમિનિસ્ટ્રેટરનો ઓર્ડર, તો અમે કાળા ઝંડા લઈને કાળા દિવસ મનાવશું. સૌ ગુજરાત, સૌ મહારાષ્ટ્ર જલશે. મહારાષ્ટ્રના નંદુભાઈ કાલે સટપાટીથી આવે છે. અમે આખું મહારાષ્ટ્ર બંધ કરાવીશું, ગુજરાત બંધ કરાવીશું ને ગારા ઝંડા લઈને 19મી ડિસેમ્બરે અમે ધરना કરીશું. ને એની દિલ્હી તક રિપોર્ટ જાય પછી અમને એમાં કહેતા કે એડમિનિસ્ટ્રેટર કે मेरे ऊपर कुछ स्ट्रक्चर पास हुआ है, એટલે રિવોક કરવો જ પડશે એનો ઓર્ડર. वापी में आरती ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज द्वारा 19वें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सोमवार को वापी की आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि स्वर्गीय श्री रसिकलाल देवजी गाला की पुण्यतिथि के अवसर पर यह शिविर रखा गया था, जिसमें वलसाड़ रक्तदान केंद्र, पुरीबेन पोपटलाखा लायंस ब्लड बैंक एवं न्यूकैम ब्लड बैंक का भी भरपूर सहयोग रहा। जहां इस शिविर में बड़ी संख्या में कंपनी के कर्मचारी एवं कामदारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, जिन्होंने बड़े ही उत्साहपूर्वक रक्तदान कर पुण्य का लाभ प्राप्त किया। वहीं शिविर में करीबन 551 बोतल रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे रक्तदाताओं के योगदान से पूर्ण किया गया। गौरतलब है कि इस आयोजन के जरिए समाज सेवा करने के उद्देश्य से पिछले 19 सालों से यह शिविर आयोजित किया जाता है। आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 1998 થી રક્તદાન શિબિરનું આયોજન થતું આવ્યું છે અને આ વખતનું રક્તદાન શિબિર એ અમારો 19મો રક્તદાન શિબિર છે। વલસાડ જિલ્લાને 3 બ્લડ બેંક, વલસાડ રક્તદાન કેન્દ્ર વલસાડથી, પુરીબેન પોપટલાખા લાયન્સ બ્લડ બેંક વાપી અને ન્યુકેમ બ્લડ બેંક હરિયાળા ઓપી હોસ્પિટલ એના સહયોગથી આ કેમ્પનું આયોજન કર્યું છે। આના અગાઉના 18મા કેમ્પમાં 451 રક્ત યુનિટ અમે એકત્ર કર્યું હતું। આ વખતનો અમારો લક્ષ્યાંક છે 551 છે અને અત્યારનો જે જુસ્સો અને સહકાર એ જોતાં એવું લાગે છે કે આ લક્ષ્યાંક અમે પૂરું કરી શકશું। અને આ રીતે આ વલસાડ જિલ્લાની તમામ જનતાઓને જેને જરૂરત હોય એ હોસ્પિટલોને રક્ત પૂરું પડી વળે, કોઈની જિંદગી બચે, આ આશયથી આવા રક્તદાન શિબિરોનું આયોજન કરતા હોય। संघ प्रदेश दमन पुलिस ने ठगी के 2 आरोपियों को अपनी हिरासत में लिया है। नानी दमन के मशाल चौक स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पिछली 10 दिसंबर को एक युवक के साथ ठगी किए जाने की घटना प्रकाश में आई थी। इस घटना में 2 अज्ञात युवक बैंक में मौजूद रामगोपाल हरिजन नामक युवक को अपनी बातों में उलझाकर 25,500 रुपए नगद लेकर फरार हो गए थे, जिसकी फरियाद नानी दमन पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई थी। ऐसे में पुलिस द्वारा बैंक के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी थी। इसी बीच मिली सूचना के तहत वलसाड़ के मोगरावाड़ी क्षेत्र से एलसीबी की मदद से धीरज ठाकुर एवं विकास उर्फ विक्की नामक दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लिहाजा इन दोनों ही आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 16 दिसंबर तक पुलिस रिमांड में भेजा गया है और अधिक कार्यवाही जारी है। पिछले 2-4 दिन पहले एक SBI बैंक जो मसाल चौक के आगे है, वहाँ पर 2 बंदे ने एक बंदे के साथ लाइन में जो पैसे भरते हैं बैंक में, जो अपने गांव भेजते हैं, वो लाइन में खड़े रह के एक बंदे को उसने अपनी बातों में लाके और उनको फौसलाया और उसके बाद उसका 25,500 रुपया चीटिंग करके वो लेके चले गए। आखिरकार इन्फॉर्मर की मदद से हमको पता चला कि ये दोनों एक्यूज वलसाड़ मोगरावाड़ी ऐसा कुछ एरिया है, वहाँ के रहने वाले हैं और वो इस केस में शामिल है। हमने हमारी टीम बनाई और वलसाड़ भेजी और वहाँ पर एलसीबी जो इंचार्ज है सब इंस्पेक्टर चिराग टंडेल, उससे भी हमने बात की और उन्होंने भी उनकी टीम के साथ मिलके ये दोनों बंदे को दमन पुलिस और वलसाड़ एलसीबी के मदद से दोनों एक्यूज पकड़े गए और दोनों को यहाँ पर दमन लाया गया और उसको माननीय JMFC कोर्ट के सामने पेश किए गए और उसको 16 तारीख तक रिमांड दिए गए। वापी की विद्या विकास हिंदी स्कूल में वक्तृत्व स्पर्धा का आयोजन किया गया। सोमवार को वापी की विद्या विकास हिंदी स्कूल में प्रबंधन की ओर से वक्तृत्व प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां इस प्रतियोगिता के तहत छात्रों को अतिथि देवो भव, असहिष्णुता एवं अच्छे दिन जैसे विभिन्न 3 विषय दिए गए थे।
ऐसे में इन तीनों विषयों में स्कूली छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस दौरान अतिथि देवो भव के विषय पर 7वीं एवं 8वीं तथा असहिष्णुता के विषय पर 9वीं एवं 10वीं कक्षा के छात्रों ने अपनी विचारधाराओं को लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। वहीं 11वीं एवं 12वीं कक्षा के छात्रों ने भी अच्छे दिन के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए, जहां दर्शकों ने भी इन छात्रों की प्रतिभा की जमकर प्रशंसा की। साथ ही विजेता प्रतिभागियों को इनाम देकर सम्मानित भी किया गया। बता दें कि इस प्रतियोगिता में 8 स्कूलों से करीबन 55 जितने प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। हमारे स्कूल में इंटर स्कूल एलिक्यूशन एंड डिबेट कंपटीशन रखा है, जिसमें मोर देन 18 स्कूल ने पार्टिसिपेट किया है। इन प्रतियोगिताओं को रखने का एकमात्र मकसद यही है कि बच्चे में जो स्टेज फियर की भावनाएं वो ख़त्म हो और उनके क्या विचार हैं, वो इसको लेकर क्या सोचते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें स्कूल पार्ट लें और सभी इस बात को समझें कि एजुकेशन एंड डिबेट क्या होता है। बच्चों ने जिस तरह से भाग लिया है, हमारे अध्यापक मंडल ने, हमारे प्रिंसिपल साहिबा ने, या हमारे जो ट्रस्टी गण हैं, यहाँ पे मेन राकेश भाई, हमारे सचिव कविलास भाई, श्यामलाल जी और भी गणेश भाई, सानी साहब, लोग सारे लोगों ने काफ़ी मिलजुल के एक प्रयास किया है और कोशिश करेंगे कि इसको हर साल इसको कंटिन्यू करें हम लोग। आइए अब यूटी न्यूज़ इंडिया में देश विदेश की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर। नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा यूटी न्यूज़ इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति द्वारा दमन और दीव के कांग्रेस अध्यक्ष केतन पटेल और उनकी धर्मपत्नी अमी पटेल को उनकी शादी के दूसरे सालगिरह पर ढेर सारी शुभकामनाएं प्रदान की गई। आगामी दिनों में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले चुनाव हेतु सेशल्स के राष्ट्रपति जेम्स एलिक्स मिशेल ने पीपल्स पार्टी की ओर से अपनी उम्मीदवारी दर्ज करवाई है, जहां इन दिनों सेशल्स में मौजूद दमन दीव प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केतन पटेल और उनकी धर्मपत्नी अमी पटेल ने जेम्स एलिक्स मिशेल के साथ शनिवार को खास मुलाकात की। इस दौरान मिशेल द्वारा केतन पटेल और उनकी पत्नी अमी पटेल को सर्वप्रथम उनकी शादी की दूसरी सालगिरह पर मुबारकबाद दी गई। वहीं केतन पटेल ने भी राष्ट्रपति जेम्स एलिक्स मिशेल को 19 दिसंबर को होने वाले सेशल्स चुनाव के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं प्रदान की। इसके अलावा केतन पटेल ने जेम्स मिशेल के जीतने की आशा व्यक्त करते हुए दमन दीव के साथ साथ अन्य देशों की प्रगति के लिए भी निरंतर कोशिश किए जाने का भरोसा दिलाया। आतंकी हाफिज सईद द्वारा भारत के खिलाफ जहर उगल, फिर एक बार दी भारत को धमकी। आतंकी हाफिज सईद द्वारा भारत के खिलाफ जहर उगलकर एक बार फिर धमकी दी गई है। उसने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का नाम लेकर कहा कि भारत मुंबई हमले का गुनाह कयामत तक साबित नहीं कर पाएगा। गौरतलब है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान में पीएम नवाज शरीफ और उनके सलाहकार सरताज अजीज से मुलाकात की थी और उन्होंने कहा था कि संसद के दोनों सदनों में पाकिस्तान से बातचीत पर वह बयान देगी। मुंबई हमले के गुनहगार आतंकी हाफिज सईद ने सोशल साइट ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि मुंबई हमलों को 7 साल हो गए, तुम यानी भारत साबित नहीं कर सके तो इंशाअल्लाह कयामत तक साबित नहीं कर पाओगे। सरगना हाफिज सईद के खिलाफ भारत की ओर से कई सबूत पेश किए गए, लेकिन पाकिस्तान अब तक सईद पर कार्यवाही करने से बचता रहा है, जबकि सईद लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलता जा रहा है। सऊदी अरब के निकाय चुनाव में कम से कम 19 महिलाओं ने जीत दर्ज कर ली है। देश के इतिहास में पहली बार है कि महिलाओं ने मतदान किया और चुनाव भी लड़ा। सऊदी अरब के निकाय चुनाव में कम से कम 19 महिलाओं ने जीत दर्ज कर ली है। देश के इतिहास में पहली बार है कि महिलाओं ने मतदान किया और चुनाव भी लड़ा। जिद्दा शहर में महिला अधिकार कार्यकर्ता सहर हसन नासिफ ने कहा कि यदि एक भी महिला जीतती तब भी हमें गर्व महसूस होता, और ईमानदारी से कहूँ तो हम एक भी महिला की जीत की उम्मीद नहीं कर रहे थे।
सऊदी अरब में पहली बार महिलाओं को मताधिकार का प्रयोग करने और जनप्रतिनिधि बनने का अधिकार मिला है। नगरपालिका परिषद की 2100 सीटों पर लड़ रहे करीब 7000 उम्मीदवारों में से 979 महिलाएं हैं। वहीं इस मुकाम तक पहुंचने के लिए महिलाओं द्वारा कई अड़चनों का सामना भी करना पड़ा। सार्वजनिक सुविधाओं में जेंडर डिवीजन लागू है, जिसका मतलब साफ है कि चुनाव प्रचार के दौरान महिला उम्मीदवार पुरुष मतदाता से संपर्क नहीं कर सकती। जेंडर डिवीजन के इस कानून के तहत सऊदी अरब में पुरुष और महिला मतदाताओं ने अलग अलग मतदान केंद्रों पर मतदान किया। दिल्ली के शकूर बस्ती में अब दौरा करेंगे कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी। राहुल गांधी का कहना है कि इस मुद्दे को लेकर मामला और गरमाने वाला है। दिल्ली की शकूर बस्ती में अब दौरा करेंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। राहुल गांधी के मुताबिक इस मुद्दे को लेकर मामला और गरमाने वाला है। वहीं सुबह करीबन 11:30 बजे पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि यह मुद्दा आज संसद में भी गूंज सकता है। 500 झुग्गी वालों को बेघर करने पर ठनी, अब केजरीवाल रेलवे मंत्रालय पर करेंगे केस। इस मुद्दे पर रेलवे मंत्री मनोहर पर्रिकर संसद में बयान दे सकते हैं, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है। राजनीति इसलिए गर्म है क्योंकि अतिक्रमण हटाने का अभियान रेलवे ने चलाया था, पर रेलवे मोदी सरकार की है, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। आपको बता दें कि शनिवार की रात रेलवे शकूर बस्ती में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया था, जिसमें एक मासूम बच्ची की मौत हो गई थी। इसलिए इस कार्यवाही के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डीएम, एसडीएम सहित 3 अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया था। फिलहाल यूटी न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। समाचार समाप्त करने से पहले फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दमन के मछुआरों ने पर्स फिशिंग को दी गई अनुमति का किया विरोध। वापी की आरती ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने आयोजित किया रक्तदान शिविर। और ठगी के मामले में 2 आरोपियों को दमन पुलिस ने किया गिरफ्तार। फिलहाल यूटी न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।